اس نورانی محفل میں جلوہ افروز ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر سید سراج الدین اجملی صاحب قبلہ، جملہ اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالر اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا عنوان دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یہی ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیز بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرتاپا نور مجسم اور پیکر حسن و جمال ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد و یکتا ہیں، اسی طرح ظاہری حسن و جمال میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو لازوال حسن عطا فرمایا۔ حسن و جمال کے اس ذکر کو اگر مختصر پیرائے میں ذکر کیا جائے تو صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ سارے جہان میں کوئی ایسی کامل عقل نہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کما حق ادراک کر سکے۔ اللہ عز و جل اپنے کلام پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بے راہ چلے، وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ میرے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ چہرے پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکرے حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبارک
मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तमाम अयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया आपने जैसा चाहा परवरदिगार आलम ने वैसा ही आपको पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन व जमील दुनिया की कोई शय ना देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। और हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीदार सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए देखा। मैं कभी आपकी तरफ देखता तो कभी चाँद की तरफ देखता, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक चाँद से ज्यादा हसीन थे। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि दीदे सिद्दीकश बगुफ्त आफताब, दीदे सिद्दीकश बगुफ्त आफताब, नेज़ मशरिक नेज़ अगर भी खुशाबाब। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो अर्ज किया, ऐ हुस्न जमाल के आफताब, तेरे जैसा ना मशरिक में है ना मगरिब में। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि हजरत हस्सान बिन साबित से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तक यही फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अब यहाँ कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, कोई सोचने वाला सोच सकता है, कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि हजरत हस्सान बिन साबित, हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन समरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और दिगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये कैसे फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, जबकि उन सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सारी कायनात और पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। तो फिर कैसे फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। दूसरी बात ये कि हजरत हस्सान बिन साबित, हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन समरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और दिगर सहाबा कराम ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं और जो हुजूर के बाद में हुए हैं उनको भी देखा नहीं। तो फिर कैसे इन नुफूस कुदसिया का फैसला मान लिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। तो आइए मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं। आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा है और जो हुजूर के बाद में हुए हैं उनको भी देखा है, जिन्होंने दुनिया के कोने कोने, खित्ते खित्ते और गोशे गोशे को देखा है। तो आप जानते हैं ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिन्हें हम जिब्रील अमीन कहते हैं, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए कि हजरत जिब्रील अमीन की वो जात है जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत यहया, हजरत मूसा और हजरत ईसा को भी देखा है। लेकिन खुद हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मशारिक़ व मग़ारिब को उलट पलट कर देखा है, दुनिया के कोने कोने, खित्ते खित्ते और गोशे गोशे को देखा है, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को ना देखा और आपकी तरह किसी को ना पाया। बल्कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरे दोस्तों, चेहरे मुस्तफ़ा मिसले आईना है। आइए समझते हैं कि चेहरे मुस्तफ़ा मिसले आईना किस तरह है। एक रोज़ बारगाह रसूल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हैं, मोहब्बत से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सारी कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ प्यारे सिद्दीक, सदक़ता, तुम सच कहते हो। इसी तरह एक रोज़ अबू जहल भी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा कोई बदसूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल, सदक़ता, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। सहाबा कराम हैरान हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्या फरमा दिया।
भला दोनों बातें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूबसूरत भी हो और खूबसूरत ना भी हो। बहरहाल सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने ये क्या फरमा दिया, भला दोनों बातें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। अबू बकर चूंकि खुद खूबसूरत हैं इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ देखने वाले, अगर रसूल को देखना हो तो अबू जहल की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, उतबा और शैबा की नजर से मत देखो, बल्कि देखना ही है तो सिद्दीक अकबर की नजर से देखो, उमर फारूक आजम की नजर से देखो, उस्मान गनी की नजर से देखो, मौला अली की नजर से देखो। देखना ही है तो इश्क की नजर से देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो, तो हुजूर तुम्हें खूबसूरत भी नजर आएंगे और पैकरे हुस्न जमाल भी नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, अबू जहल देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, अबू लहब देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा और शैबा देख तो रहे थे मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहे थे, लेकिन सिद्दीक अकबर देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। उस्मान गनी देख रहे थे, उमर फारूक आजम देख रहे थे, मौला अली देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। इसलिए मेरे सरकार उन्हें खूबसूरत भी नजर आए, अच्छे भी नजर आए और पैकरे हुस्न जमाल भी नजर आए। अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा जिन आंखों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं, अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा जिन आंखों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हुस्न वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, हुस्न वाला तेरे जौबन का, आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कुर को क्या नजर आए क्या देखे, दीदे कुर को क्या आए नजर क्या देखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।